Am I audible? Yes, madam. Screen is visible. Screen is not yet visible, ma'am. Presentation is not visible. No, madam. Just a second. मॅडम आता करून बघा. हो करते. Is it okay now? No, madam. We are not able to see the screen. No, we cannot see. Just a मॅडम second. काइंडली शेअर फर्स्ट ऑप्शन ब्लॅक कलरची जी स्क्रीन दिसेल ना मॅम फर्स्ट वाली हाँ, ती शेअर करा. visible now? नो मॅडम. No? नो नो. Just a second. मॅडम स्क्रीन 1 येईल ना लेफ्ट साइडला स्क्रीन 1 Oh, ती वाली शेअर करा मॅम त्याच्यावर क्लिक करून. just 1 second. येस मॅडम. So, we are going to see the quality measurements of the research. Okay, how to measure the quality of the research. So, various tools are there, and the topic is research matrices, right? You already know UGC has recommended some of the journals under UGC Care. Under UGC Care list Group 1 and Group 2, right? Under Group 1, UGC has nominated some subject experts from all over India to choose the journals from various subjects, right? And it is expected that the research scholars and the teachers should publish their papers, research papers, in these journals only. So, UGC Care list of Group 1 includes the journals which are recommended by various subject experts nominated by UGC. And the Group 2 includes the journals which are indexed in International Citation Measuring Services, that is Web of Science and Scopus, right? So this is the UGC Care list page, UGC Care. Actually, recently, this is scrapped by the UGC. Okay, this is not in existence now, but these are the actually journals which were recommended by the experts. Right? These are all the journals. You can see these are the journals from social sciences. These are the journals from my subject, that is library and information science. And it was expected that you should publish your papers in those journals. UGC list group 2 includes Web of Science, which includes three services, that is Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index, and Social Science Citation Index, and also the Scopus database. Right. Now, how to measure the quality of the research? That is the question today. What are the parameters to measure the quality of your research? It is rightly said by William Thomson and Lord Kelvin that if you can measure that of which you speak and can express it by a number, you know something of your subject. But if you cannot measure it,
your knowledge is meager and unsatisfactory. देखिए, आपको जो भी रिसर्च करना है, you should measure the quality in a number. That is important. Okay? If you cannot measure it, your knowledge is meager and unsatisfactory. Now, what is the research impact? Research impact is the effect research has beyond academy. When the knowledge generated by our research contributes to, benefits, and influences society, culture, our environment, and the economy, it is said to have research impact. See, every word has got its own weightage, right? When our research contributes to, benefits, influences, society, culture, and environment and economy, it is said to have research impact. Now, how research impact can be measured? Can be measured in terms of citation impact, impact factor services, journal impact, book impact, individual research impact, and measurement of esteems. These are the 5 criteria to measure your research impact, right? We'll see one by one all these. Now, you all know what mean by citation. When you give reference in your paper or in your thesis, it is the one citation, right? Now, there are some citation measuring databases. There is Scopus, Web of Science, मैडम Yes, हिंदी भी citation बीच में लो, index. हिंदी और इंग्लिश दोनों Hello? मिक्स। मैडम महाराष्ट्रीयन लोग हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लो, मतलब बीच बीच में। हेलो, हाँ, हिंदी हिंदी में भी बोलो, मतलब मैडम हिंदी हिंदी। हेलो, मॅडम हिंदी आणि इंग्लिश मिक्स असं म्हणतात हे. इंग्लिश हो, हिंदी आणि ओके इंग्लिश ओके. दोन्ही मिक्स मध्ये। हो, ठीक आहे मॅडम, थँक्यू। See, there are citation measuring databases. 4 databases है, Scopus, Web of Science, Google Scholar, or Indian Citation Index. There are many, but these 4 are very important for all of us to know. Okay, so we will cover all 4 in detail. Now, coming to Scopus. Scopus is a citation measuring database which is maintained by Elsevier, right? This is the Scopus page. आप यहाँ पे देख सकते हो, this is the Scopus page. और यहाँ पे आप देखेंगे स्कोपस का कंटेंट कवरेज गाइड है, स्कोपस सोर्स लिस्ट है, बुक टाइटल लिस्ट एंड स्कोपस डिसकंटिन्यूड सोर्स लिस्ट. जो भी जर्नल स्कोपस से निकाल दिए जाते हैं तो डिसकंटिन्यूएशन का ये लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाता है. There is one more thing over here, that is author search. When you click on this author search, you will get the screen of search, right? उसके पहले हम देखेंगे कि स्कोपस में क्या क्या इंक्लूडेड है, right? This scopus includes over 25,100 titles. उसमें से 23,452 are peer reviewed journals. उसमें से भी 5,500 fully open access journals है. It also indexes 294 trade publications, 852 book series, for 9.8 million conference papers from over 1,20,000 worldwide events. ये पूरा स्कोपस का लेटेस्ट कवरेज है. और जो मैंने कहा था कि when you go to author search, you will get a search page. उसमें अगर आपके पेपर्स स्कोपस में है, you can put your name also. जैसे मैंने मेरा खुद का नाम डाला है, तो मेरे 9 पेपर्स जो है वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं. When I click on this 9, you will get the citations. Okay? मेरे 9 पेपर्स है, उसको 20 लोगों ने साइटेशन किया है और अकॉर्डिंग टू स्कोपस माय एच इंडेक्स इज 3. आप यहाँ पे देखेंगे
ईयर वाइज साइटेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट? ग्राफ ही मिलेगा आपको। These are the 9 papers you can see over here, और यहाँ पे हर पेपर को कितने साइटेशंस मिले हैं वो आपको यहाँ से दिखेंगे। This is actually the Scopus. Now, when you go to Scopus और आप जर्नल्स का सर्च करेंगे, जैसे सब्जेक्ट एरिया में जाएंगे, इंटर योर सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से कुछ रिजल्ट आएगा। स्कोपस में सबसे पहले नंबर पे है CA, कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस। आप यहाँ पे देखेंगे उसका साइट स्कोर 160.19 है। उसके बाद में 2018 का ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की हूँ 2018, ये साइट स्कोर 2018 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 20,184। देन पिछले 3 साल में कितने साइटेबल आइटम्स यानी कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए उनके इश्यूज में 126 परसेंटेज ऑफ साइटेड। और उसके बाद में भी और बहुत कुछ डिटेल्स आपको मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर सब्जेक्ट एरिया किया, ड्रॉप डाउन एरो आया, उसमें मैंने सिलेक्ट किया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आई रिट्रीव 289 जर्नल्स, राइट? और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, जिसका साइट स्कोर 8.81 है। आप यहाँ पे देखेंगे 2018 में 2556 साइटेशंस मिले हैं, और डॉक्यूमेंट्स पिछले 3 साल में 290 है, राइट? उसके बाद में ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। SNIP, STR। SNIP और STR क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगी, राइट? इसका पब्लिशर कौन है ये भी आपको यहाँ से पता चलता है, राइट? अभी हम एक जर्नल लेते हैं, हमने लिया जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका पब्लिशर है स्प्रिंगर नेचर, राइट? तो उसका साइट स्कोर इज नथिंग, इट इज जस्ट the impact factor of the journal according to Scopus. Scopus is not using the term impact factor, it is using the word site score, right? अभी देखिए साइट स्कोर हमें कैलकुलेट करना है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फॉर द ईयर 2018। तो हमें कौन सा डाटा लगेगा 2018 का, यानी पिछले 3 साल पीछे जाओ, दैट इज 2015, 2016 एंड 2017। ओके, ये 3 साल में कितने डॉक्यूमेंट्स उन इश्यूज में पब्लिश हुए? तो इन लास्ट 3 years 84 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए, राइट? ये 84 डॉक्यूमेंट्स को 2018 तक कितने साइटेशंस मिले? तो 84 डॉक्यूमेंट्स को 635 साइटेशंस मिले। So 635 divided by 84, that comes to 7.56, and that is the site score of the Journal of Information Technology for the year 2018, right? अभी हर साल ये वेरिएबल्स जो है, ये दो साइटेशन काउंट एंड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश, ये वेरी होते जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर या वी कैन से साइट स्कोर ऑफ स्कोपस कैन बी वेरीड, राइट? अभी एक और चीज आपको यहाँ से मिलती है, व्हाट इज द STR फॉर 2018? It is 2.115 and SNIP is 3.656, right? So these are all the parameters. Whenever you publish your article in Scopus Index Journal, you should give the information about site score, STR and SNIP in your biodata, right? And also for the need of NAC also. NAC में भी आपको ये सब मांगा जाता है. These parameters indicate the quality of the journal. Now, another citation measuring database is Web of Science. Every university is having the subscription of Web of Science, right? Through eShodhasindhu. Now, this is the Clarivate page of Web of Science,
and you can also search this page. From here, you will get the master journal list and you will know which of the journals from your subjects are indexed in Web of Science, right? Now, we'll go ahead and see some of the journals from Library and Information Science, which is my subject. You can also type your subject over here and you will get the list of the journals from this Web of Science. Web of Science actually is online service which is maintained by Thomson and Reuters, and its impact factor is known by ISI impact factor. देखिए, आप जब भी आपके रिज्यूम में इम्पैक्ट फैक्टर लिखेंगे तो उसके पहले वो कौन सी सर्विस का है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना बहुत आवश्यक होता है। तो वेब ऑफ साइंस का जो इम्पैक्ट फैक्टर है, इट इज नोन बाय ISI इम्पैक्ट फैक्टर बाय थॉमसन एंड रूटर। तो वी हैव सीन स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस। अभी हम देखेंगे हमारा सबसे पॉपुलर वन, दैट इज गूगल स्कॉलर। देखिए, गूगल इज अ कमर्शियल सर्च इंजिन, लेकिन गूगल स्कॉलर उसका जो एक पार्ट है, दैट इज एन एकेडमिक पार्ट, स्कॉलरली कम्युनिकेशन पार्ट। गूगल स्कॉलर में वही क्वेरी जो आप गूगल में देते हो, आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे, राइट? देखिए, ये गूगल स्कॉलर का पेज है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे माय प्रोफाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 लाइन्स है। देखिए, कोई भी वेब पेज पे 3 लाइन्स और 9 डॉट्स है, तो आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी सर्विस है। यहाँ पे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस आपके लिए है जो आप हमेशा इग्नोर करते होंगे। मैं आपको 2-3 स्लाइड के बाद में बताऊँ। लेट्स टॉक अबाउट गूगल स्कॉलर नाउ। ये गूगल स्कॉलर जो है, इसमें अगर आपका नाम टाइप करोगे तो आपके जितने भी आर्टिकल्स गूगल में हैं वो सब आपको डिस्प्ले होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है cited by 27, cited by 24, cited by 20, cited by 17। तो आपका ये आर्टिकल कितने लोगों ने साइट किया है, दैट इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम गूगल स्कॉलर, जो गूगल आपको नहीं देता। यहाँ पे देखिए, इट इज रिटन इन ब्लू, दैट मीन्स इट इज अ लिंक। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट वेयर योर आर्टिकल हैज बीन साइटेड। किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ आपका आर्टिकल साइट हुआ है। अगर बहुत अच्छे जर्नल्स में साइट हुआ है तो आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च इट एनहांसेस ओवर हियर, राइट? लेट्स गो अहेड। ये गूगल स्कॉलर जो है वो एक स्पेशल सर्विस देता है, दैट यू मस्ट नो, एंड दैट सर्विस इज माय साइटेशन सर्विस। अभी देखिए, गूगल में मेरा जीमेल में ईमेल है, मैंने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया। ये मेरा बहुत पहले का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर आप आज करते हो तो आपको आपकी इंस्टीट्यूशनल ईमेल का जरूरत पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनल ईमेल देके ही यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन होता है। गूगल स्कॉलर मुझे क्या क्या दे रहा है, माय साइटेशन सर्विस। गूगल स्कॉलर मुझे बता रहा है कि आपके 20 आर्टिकल्स गूगल में है, उसको 152 साइटेशंस, टोटल 152 साइटेशंस। आपका H इंडेक्स 7 है और आपका I10 इंडेक्स इज 6। व्हाट डू यू मीन बाय I10 इंडेक्स? I10 इंडेक्स में मतलब आपके कितने रिसर्च पेपर्स को 10 से ज्यादा साइटेशंस है। You can see here 1, 2, 3, 4. My 6th paper has more than 10 citations. So my I10 index is 6. Now how to calculate H index? My H index is 7. A simple formula to calculate your H index is आपके जितने भी पेपर्स है, सपोज मेरे 10 पेपर्स पब्लिश हुए, राइट? तो आप एक काम करो कि हर एक के सामने उसको कितने साइटेशंस मिले हैं वो लिख लो। फिर ये साइटेशंस कॉलम जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लो। मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी देखिए,
मेरा फर्स्ट आर्टिकल है उसको 1 से ज्यादा साइटेशंस मिले, मेरा दूसरा पेपर है उसको 2 से ज्यादा साइटेशंस मिले, तीसरे पेपर को 3 से ज्यादा साइटेशंस मिले, चौथे पेपर को 4 से ज्यादा साइटेशंस, फिफ्थ पेपर को 5 से ज्यादा साइटेशंस, सिक्स पेपर को 6 से ज्यादा साइटेशंस, सेवेंथ पेपर को भी 7 से ज्यादा साइटेशंस है, लेकिन मेरे 8वें पेपर को 8 से ज्यादा साइटेशंस नहीं है, तो मेरा एच इंडेक्स 7 पे ही रुक जाता है, राइट। जब मेरे 8वें पेपर को 8 से ज्यादा साइटेशंस मिलेंगे तब मेरा एच इंडेक्स बढ़ जाएगा, विल कम 8, ओके। फिर 9th पेपर को 9 से ज्यादा साइटेशंस मिलेंगे तो इट विल बिकम 9, और 10th पेपर को 10 से ज्यादा साइटेशंस मिलेंगे तो मेरा एच इंडेक्स 10 हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी आर्टिकल्स लिखना बंद कर दिया, मेरे 10 ही आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स नहीं बढ़ रहे, मेरा एच इंडेक्स भी नहीं बढ़ेगा। दैट इज एक्चुअली द लैकिंग इन दिस मैट्रिक, राइट। तो उसके लिए क्या उपाय है वो मैं थोड़ी स्लाइड्स के बाद में बताऊंगी, लेकिन ये एच इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सबको समझ में आया? एनीबॉडी कैन अनम्यूट? Yes, ma'am. यस, ओके। नाउ विल गो अहेड। एक वेल स्कॉलर में 3 लाइंस में ना एक टूल है, दैट इज जर्नल सिलेक्शन टूल, ओके। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज में मुझे ऑप्शंस आए हैं, मैंने सोशल साइंसेस क्लिक किया, अंडर सोशल साइंसेस वो जो फेमस जर्नल्स है उसको रैंकिंग करके दे रहा है। अकॉर्डिंग टू गूगल स्कॉलर, अंडर सोशल साइंसेस जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स इज ऑन द नंबर 1 इन कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन। तो इस प्रकार से आपको जर्नल की लिस्ट मिलती है, गूगल स्कॉलर बना के देता है कि विच जर्नल इज पावरफुल इन योर सब्जेक्ट। इसमें सब कैटेगरीज को क्लिक किया, अंडर सोशल साइंसेस देयर इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसको मैंने जब क्लिक किया देन आई गॉट दैट जर्नल ऑफ द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी is on number 1, Scientometrics, then it is followed by Journal of Informatics. So whenever I want to send my article for publishing, then it will give me the hints that these journals are powerful in your subject and you can send your research papers to these journals. Okay, so now we have seen citation measuring databases, Web of Science, Scopus, and Google Scholar. There is a very new service, Indian Citation Index. It is new. It is subscription based. You can register the user, and many times you will get guest access for this. You can try once. Okay, for few hours or few days, they will give the guest access. Okay. Now this is the service, and it is covering the journals which are published in India. Recently, more than 1200 journals they are indexing, and you can see the subject-wise list of journals. Agriculture 87 journals, anthropology 7, arts and humanities 7, and chemistry you can see 40 journals they are indexing. So these are the journals it is indexing. From my subject, they are indexing 16 journals. Now, every issue of the journal, when you observe, there are different type of material it is given. Maybe research articles, review articles, editorial, case studies, etc. So, Indian Citation Index is indexing uh, only the material like research articles, review articles, short or brief communications, editorial and letter to editors, then research notes, case studies, case reports, opinion papers, and observations. Only this material is indexed, while advertisement, digest, then obituaries, book reviews, news and views, announcements, and from the text, all this information is not indexed. Now, this is the home. This is the page of registration.
You can put your details into it and you can register. If you are lucky, you will get the guest access also. When you log into it, you will get some special services like simple search, advanced search, institution analyzer, data comparer, journal analyzer, then mark records, search history, and cited references. Right now, if I'm going to search for articles, so I have given the keyword bibliometric should come in the topic, any title. Okay. Now, under this, I retrieved 93 articles. ठीक है, bibliometric keyword देने से मुझे 93 articles आए. अभी एक आर्टिकल है, A Bibliometric Study of Publications by Indian Ophthalmologists and Vision Researchers. इसका bibliometric information आप यहाँ पे देख सकते हो. लेकिन इस आर्टिकल को कितने citations मिले? 6 citations मिले. Again 6 is written in blue. That means आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल कहाँ साइट हुआ है वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा. और ये आर्टिकल में ऑथर ने कितने रेफरेंसेस दिए? दैट इज 14 रेफरेंसेस. That also you can see over here. Now, how the entry looks like? ये geographical information है. Time cited 6, references 14, abstract is given, keywords is given. और इसमें एक और चीज है, अगर वो जर्नल ओपन एक्सेस है तो यू कैन गो टू फुल टेक्स्ट आल्सो. और यहाँ पे देखिए ईयर वाइज वो आर्टिकल को कितने साइटेशंस मिले हैं उसका पूरा ग्राफ आपको यहाँ से मिलता है. राइट. सो दिस इज द आर्टिकल. और यहाँ पे आप देखेंगे कि रेफरेंसेस कौन से दिए हैं उन्होंने, उसका भी उन्होंने यहाँ पे ये साइटेड है. नाउ इसमें से आप इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस डाउनलोड कर सकते हो. राइट. You can refine the search. You can refine within the institute also. We can navigate within the previous searches you have done. और स्पेशल एनालिटिकल फीचर्स जो है वो है इंस्टीट्यूशनल एनालाइजर, डेटा कंपेरर एंड जर्नल एनालाइजर. अभी इंस्टीट्यूशनल एनालाइजर में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है? जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया और इंस्टीट्यूशंस में मैंने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लिया. तो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अगर ये लिस्ट मुझे आ गई, आपने किसी भी 5 का अगर आपने सिलेक्शन किया यहाँ पे तो वो आपको बता रहा है कि किसका रिसर्च प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. जैसे वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट is on the topmost position under agriculture with 4411 articles. उनके साइंटिस्ट के 4411 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं. It is followed by Indian Veterinary Research Institute, followed by National Dairy Research Institute. और इसमें भी आपको आर्टिकल्स ईयर वाइज देखना है, ईयर वाइज क्या है, उनको कितने साइटेशंस मिले हैं. So you can see under this with graphical representation. So this is a tool which helps you out during NAC presentation especially. Second one is data comparer. अगर आपको randomly 5 universities का productivity देखना है, research productivity, just click on these boxes. जैसे मैंने 5 लिए टॉप मोस्ट और इनको मैंने क्लिक किया तो यू विल गेट द रिसर्च प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स. दिस इज द डेटा कंपेरर टूल. यहाँ से देखिए ईयर वाइज आर्टिकल्स भी आपको मिल रहे हैं और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ से दिख रहा है. एंड थर्ड वन इज जर्नल एनालाइजर. Under journal analyzer, suppose if I have selected science subject over here. Under science, there are number of list of journals. So I have selected current science. You all know current science. तो इसको मैंने क्लिक किया तो करंट साइंस का लास्ट 10 years का परफॉर्मेंस वो आपको यहाँ पे देगा.
जैसे 2004 में 611 आर्टिकल्स पब्लिश हुए, तो 1665 साइटेशंस मिले, उसमें से सेल्फ साइटेशंस 373। लेकिन देखिए सेल्फ साइटेशंस जो होते हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं किए जाते, और इसका JCI जर्नल जर्नल साइटेशन इंडेक्स इज 0.13, ये उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। सब्जेक्ट कैटेगरी के हिसाब से भी आप पी लेयर सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कलेक्ट किए, क्लिक किया, उसमें एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड दैट टू यहाँ पे कॉलेज लाइब्रेरी, राइट। तो इस प्रकार से यू कैन सर्च। देन साइटेड रेफरेंसेस जो है, तो जैसे मैंने आपको 6 दिखाया था, उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं। एंड इसमें से आपको एक और चीज मिलती है, दैट इज एक्चुअली हाईएस्ट साइटेशंस किस ऑथर को मिला है, वैसी इंफॉर्मेशन, या फिर आपके सब्जेक्ट में हाईएस्ट साइटेशन किस ऑथर को मिला है। Such type of queries can also be satisfied from this particular thing, that is Indian Citation Index. There are other than these four, there are some services which are the citation measuring databases like ProQuest, then you can see Ovid, Tester is there, then even ResearchGate is there, but the volume covered by ResearchGate is not so vast than of these services, that is Google Scholar, Indian Citation Index, Scopus, and Web of Science. That is why these four services we must know as a researcher. Right? Now there are n number of impact factor services. Some are genuine, some are recommended by UGC, and some are the fake services. So you should be very careful. Okay, you will be receiving emails. Send your manuscript to us. Our impact factor is 7.5, 7.8. You should not go for those journals. Simple thing. Now I will clear which journals and which impact factor is genuine, for which you will get the weightage for your research. Now suppose Cell is a renowned international journal from science. Right? Now I want to calculate the impact factor of research journal Cell for the year 2009. The Scopus is using the terminology CiteScope. Web of Science is using the terminology impact factor. अभी impact factor 2009 का कैलकुलेट करना है सेल के लिए, तो I must have the data of previous 2 years, that is 2007 and 2008. कौन सा डेटा चाहिए? 2007 में कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए, 2008 में कितने आर्टिकल्स पब्लिश। Now you can see number of items published in Cell in 2008 are 343, 2007 are 366, that is 709, और ये 709 आर्टिकल्स को 2009 तक नए साइटेशंस मिले। देखिए 2008 में मिले 9533, 2007 में मिले 12554, that comes to 2087. So these are the articles published, these are the citation received previously 2 years, is divided by this, that comes to 31.152, that is the impact factor of the journal Cell for the year 2009. And every year this impact factor will fluctuate, right? और एक चीज ध्यान में रखिए, whenever you give the impact factor for your research publication, you please mention the year. देखिए आपका पेपर अगर 2009 में पब्लिश हुआ है, तो you should quote the impact factor of 2009 only, not the recent one 2025. Okay, that care should be taken.
क्या समझा सबको? प्लीज कमेंट. Yes, madam. Yes. So these two things are very important to know. For Scopus, site score, and for Web of Science, it is ISI impact factor. Right? You should always give, whenever you quote the impact factor, you should give the service. Okay. Now, there are so many impact factor services. Some are genuine, some are bogus services. So you should be very careful. I will give you some of the examples. There is one impact factor, that is international impact factor service. Then international services for impact factor and indexing. And there is UIF, that is universal impact factor. Some of the journals which are published from Maharashtra, they are having this factor, universal impact factor. Then impact factor services for international journals, Index Copernicus, then National Academy of Agricultural Sciences, that is NAS rating, Global Impact Factor, and Cosmos Impact Factor. Whenever you go to the impact factor service, please observe their web page. Okay. See, this is the International Impact Factor Service. The homepage itself, it is giving alert message. This is to inform you that somebody is using our name to deposit the fee for impact factor, and he is saying that he show your impact factor in our website. Then these are the main links given on the homepage. And see, it is evaluation methodology. See, there is a blunder spelling mistake over here. So this is impact factor is simply a scholarly matter, और उसके वेबसाइट में इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए. So you can judge it. Okay. Now you can see there is one more service, ISIFI, International Services for Impact Factor and Indexing. So from here you can see the master list. Then third one is Universal Impact Factor. Fourth one is IFSIJ. Then there is one more, that is Index Copernicus, but it is neither using site score or neither using impact factor. It is giving their own IC value, and for calculating this IC value, they have different formula. So these are all the journals master list is given, and these are the IC values. So whenever your research paper is published in the journal which is indexed in Index Copernicus, you should follow this. You should give IC value. Okay, that is important. See, from 2000 till 2017, अगर कोई भी सर्विस का इम्पैक्ट फैक्टर है आपके पेपर को, तो आपको एडिशनल मार्क्स आपके एपीआई में दिए जाते थे. लेकिन 2018 का जो नोटिफिकेशन है, एज पर दैट they are only considering site score and ISI impact factor, that is Web of Science. They are not considering other impact factor services or additional marks. Right? That you must remember. Now, see, from my side subject, these are the journals which are indexed in Index Copernicus. Now, National Academy of Agricultural Sciences is giving NAS rating. Actually, it is for agricultural scientists for appointment and promotions, right? And it is based on, the base is वेब ऑफ साइंस का जो ISI इम्पैक्ट फैक्टर है, उसको थॉमसन एंड रूटर का उसको बेस लिया गया है, और उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है to calculate the score for the individual. So this is also a genuine service, but it is for agricultural scientists, and they have given here the formula. Now there is one more service, that is Global Impact Factor. Here you can search by you giving your subject name over here. Of the journals are indexed. Global Impact. There are some journals which are indexed in Cosmos. These are the indexed journals in Cosmos.
You should avoid all these journals because you will not get extra weightage for this. Then general impact factor, GI. There is one more service which is claiming 19,000 journals are indexed. It is scientific journal impact factor. देखिए एक स्कॉलरली ओपन एक्सेस ब्लॉग खुला था जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने एक डिस्कशन फोरम निकाला था और उन्होंने कहा था कि बोगस इम्पैक्ट फैक्टर कंपनीज कौन सी है विथ रीजंस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग यू कैन गो थ्रू. उन्होंने क्या कहा था कि ये जो ओपन एक्सेस मूवमेंट आया है तो उसमें प्रिडेटरी पब्लिशिंग की चांसेस बढ़ गए. तो they said that the proliferation of predatory open access publishers has created several new and expanding markets. One of these is the market for journal rankings. Because few predatory publishers are able to earn legitimate journal rankings, companies have emerged that for a fees award bogus impact factors to low quality journals. So they have called it as a market. Publishing industry now became market. They charge you and they publish your content. Okay? क्या है हम दोनों तरफ से मारे जाते हैं. हम कंटेंट भी देते हैं स्कॉलरली उनको और ऊपर से पैसे भी देते हैं. तो उन्होंने ऐसे प्रीडेटरी इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज को उन्होंने एक किया पॉइंट आउट किया था. उसमें से एक बताना चाहूंगी. इट इज ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. इसमें से ग्लोबल कीवर्ड को निकाल दिया जाए तो इट इज इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. देखिए वेब ऑफ साइंस के जो सर्विसेज है साइंस साइटेशन इंडेक्स, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स और 1960s में यूजिन गारफील्ड ने शुरू किया था. और ये जो साइटेशन इंडेक्सेस है वो प्रिंट फॉर्मेट में पब्लिश होती थी. राइट. 1990s में थॉमसन एंड रूटर ने इसको टेक ओवर किया और इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी बंद हो गई. राइट. इन्होंने उसी नाम का इस्तेमाल किया है सिर्फ ग्लोबल नाम लगा के. So this bogus organization is an obvious appropriation of the former Institute for Scientific Information, that is ISI, which no longer exists. Its journal impact factor was taken over by Thomson and Reuters. I think this operation is based in India, but they provide no location information on their website, and their domain name information is blocked. आप यहाँ पे देखेंगे domain name information is blocked. So be careful about all these services. और जब भी आपको जर्नल का कोई मैसेज आता है तो आप देखिए वेदर इट इज फोकस इंडेक्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स. उन्हीं दो को वेटेज है, बाकी किसी को वेटेज नहीं है. वो उसी इम्पैक्ट करते हैं. Now there are some journal evaluation tools, that is journal citation reports, Scopus Journal Analyzer, Schemaco Journal and Country Rank, that is SJR and SNIP. देखिए NAC में अगर आपके फैकल्टी के पेपर्स स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में हैं तो NAC को 3 इंफॉर्मेशन देना जरूरी है उस आर्टिकल. एक तो साइट स्कोर ऑफ द जर्नल, दूसरा SJR ऑफ द जर्नल and SNIP. The journal citation report is subscription based service. Then Schemaco journal ranking and SNIP, these are the two services which are open access services, free of cost. It is based on Scopus database. So if you are not having Scopus subscription, then also you can go to Schemaco journal and country rank and you can get the SNIP of the journal and ranking of the journal. So these two are totally free services which are based on Scopus. Then journal citation reports, Web of Science every year publishes journal citation report. And you must remember one thing, that is my personal experience, that the package of Web of Science which is
provided to the universities of Web of Science, that is under eShoda Sindhu, that is actually not included the subscription of JCR. Okay? उसके लिए अलग सब्सक्रिप्शन लगता है। ये JCR का हमारे यूनिवर्सिटी में भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, सो आई कुड नॉट गेट द पेज। गूगल में से मुझे जितना डेटा मिला उतना मैं यहाँ पे लाई हूँ। देखिए, दिस इज द 2019 जर्नल साइटेशन JCR। हर विषय में वो रैंकिंग करता है जर्नल्स के, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर आपको दे रहे हैं, साइटेड हाफ लाइफ दे रहे हैं, इमीडिएसी इंडेक्स दे रहे हैं, और एज पर JCR Web of Science, CA, a cancer journal for clinicians, is on the number 1, okay? And is having impact factor 2 to 3.679. Such a huge impact factor is. Now, Scopus Journal Analyzer is also one of the services provided by Scopus. You can go to Scopus web page and you can avail. Depending upon the Scopus database, this is STR, that is Keymago Journal and Country Rank. This is totally open access. Just type in Google Schemago Journal and Country Rank and you will get this page. And from here, what information you will get? You will get the journal rankings. See here also, according to Scopus, the same journal is on number 1. It is having STR value 72.576 and it comes under Q1. देखिए, Scopus journals के लिए 4 quadrants दिए हैं to measure the quality: Q1, Q2, Q3 and Q4. So these are all the journals which are included under Q1. इसमें देखिए H index दे रहे हैं इस जर्नल का। टोटल 2018 का मैंने लिया था, तो total documents published in all the issues in 2018 are 45. Last 3 years, because site score हमें calculate करना है. Last 3 years, 127 documents published. 2018, this many references are given. Then last 3 years, these many citations, all the documents received. Okay, तो इस प्रकार से आपको पूरे डिटेल्स जो है वो मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, मैंने सोशल साइंसेस क्लिक किया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस क्लिक किया। आई हैव नॉट सिलेक्टेड द कंट्री, I have not selected the type, but I have selected the year, that is 2018. So, in 2018, from my subject, 227 journals were indexed in Scopus. This is the list with all the details. Now, I have selected India. And from India, in my subject, only 3 journals are indexed in Scopus. These are the journals. And that too, in Q3, Q2, Q3 and Q4 categories. See, the number and the color indicates. मतलब Q1 category में हमारा subject अभी तक नहीं आया है. So you can go and search for your subject and you will get the journals. And you should prefer all these journals to send your articles. That is our move, right? So this is the DECIDOC journal. It is published by DRDO. And you can see its H index is 8. And you will get all these peculiarity. For detailing में you will get the graphical representations also. This is the second one. H index is 9. And this is the graphical representations. This means the total citations you received, these many are self-citations. These are excluded while calculating the site score. And I wanted to see, as the point of research productivity, where is our country, that is India. India is on the 9th position. US is on the 1st, China followed on the 2nd. UK on the 3rd, 4th Germany, 5th Japan, 6th France, Canada on 7th position, Italy on the 8th, and then comes India.
इंडिया के इतने सारे पेपर्स स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश हुए। इंडिया का एच इंडेक्स एज पर स्कोपस इज 570। Beautiful graphical representations are given year wise, and I have given over here library and information science. From my subject also, India is on 9th position with 3597 documents. Okay. Now, for social sciences, H index is 130. Now, talking about Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 जैसे पूरे जो जर्नल्स है उसको 100% कर दीजिए. 1 to 25% comes under topmost journals, Q1, the quality. Then 25 to 50% journals, they come under Q2. 3 to 75% journals, they come under Q3. And 75 to 100% come under Q4. So Q1 is the most qualified journals. By selecting the journals, you can take care of this Q1, Q2, Q3 and Q4 also. Now, how STR is calculated? This is the formula given. We will not go into the detail of this formula. Then source normalized impact per paper, that is SNIP. This is also given. You will get from this HDR website. Okay. Per paper का क्या है? There are some more journal evaluation tools, but we will not go into the detail. Suppose the publication is a book, तो book का impact भी आप निकाल सकते हो from Google Scholar, Google Books. There are book review databases also like Factiva, Google Books, Chester, and so many. Now, individual being a scientist, the individual research impact मुझे calculate करनी है. तो Google Scholar है. There is one free software, Publish and Perish. You can install that software into your computer. Scholorometer is there, Web of Science, Scopus, HMX prediction, and Altmetrics. Now I have told you that there are some lacunas when you calculate H index, right? But the solution is G index. Okay? G index is powerful than H index. So these are alternative indices you will get. Now Google Scholar is a free service. Publish or Perish is a free software. Scholorometer is a free web browser. Then Web of Science is Thomson Reuters Web of Science. It is subscription based. Scopus is also subscription based. H-index prediction is free online tool developed by Conrad Holdings. And Altmetrics are non-traditional metrics. Now, if you are a researcher, you must register on these platforms. Researchers profile like Socrates, Vidwan, Researcher ID, Thomson and Reuters, My Citations Google, Scopus Identifier and ORCID. यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. If you want to become a good researcher, तो आपको ये प्लेटफॉर्म्स का यूज करना चाहिए. दिस इज द विद्वान प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनक्लिपनेट जो यूजीसी का ऑटोनॉमस बॉडी है उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और आप यहाँ पे देखेंगे more than 54,000 experts they have entered their biodata into this. You should register first and then log in. अभी देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के कितने एक्सपर्ट्स का बायोडाटा यहाँ पे. Suppose you want to search for resource persons for any event, you can search with one database. देखिए 2009 में ये डेटाबेस का शुरुआत हुआ. अदर देन डायरेक्टर वाज डॉक्टर जगदीश अरोरा और उनका एक्सपर्ट आईडी है नंबर 1. तो यहाँ पे यू कैन गो फॉर योर सब्जेक्ट. मैंने लाइब्रेरी साइंस डाला, इसमें मुझे ये सब एक्सपर्ट्स के चीजें आई
this is Dr. Mohan Khirde, retired librarian of Amravati University. का अगर मुझे विद्वान आईडी देखना है तो 44079। आप जब भी बायोडाटा लिखते हो, आपने विद्वान आईडी आपका लिख दिया तो ऑटोमेटिकली दे विल सर्च फॉर योर बायोडाटा, राइट। दिस इज माय कलीग, उनका ये है 68207। उसके बाद में स्कोपस ऑथर आइडेंटिफायर है विद्वान के बाद में। स्कोपस में आपको ऑथर सर्च जो है वहां से मिल जाएगा। अभी वेब ऑफ साइंस का अगर रिसर्चर आईडी आपको क्रिएट करना है तो आपने रिसर्चर आईडी में जाना है और पबलॉन्स और पबपियर, ये दो प्लेटफॉर्म्स है। तो पबलॉन पे आप रजिस्टर कर लीजिए खुद को, आपको एक फॉर्म आएगा और वो फॉर्म में आप आपका पूरा इंफॉर्मेशन डाल दीजिए एंड यू विल गेट अ यूनिक आईडी, दैट इज रिसर्चर आईडी D3932। ये जो यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स होते हैं ना, NRI एंड ऑल, तो उसके लिए आप लोगों को ये रिसर्चर आईडी ही भेजना पड़ेगा। उसमें से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं आपका स्कोर। There is one more platform for researchers, that is Orchid। यहाँ पे फॉर रिसर्चर्स को आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आपका पूरा बायोडाटा उसमें डाल देंगे तो यू विल गेट अ यूनिक आईडी, जैसे मुझे ये मिला है। एंड दिस ऑर्किड आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब आईडीज अगर आप आपके ईमेल को लगा देंगे, जहाँ कहीं भी आप आपका रिज्यूम भेजते हैं तो दे विल ऑटोमेटिकली नो व्हाट इज योर रिसर्च। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम कमिंग टू अल्टमेट्रिक्स। अल्टमेट्रिक्स मीन्स सोशल वेब। आजकल सोशल वेब पे आपका रिसर्च जो है वो रिसर्च दिखता है। सो हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ योर पेपर्स आर अंडर सोशल वेब। See, the term altmetrics was coined by Jason Bryan, doctoral student in information science at the University of North Carolina in 2010. Altmetrics is the creation and study of new metrics based on social web for analyzing and informing scholarship. Altmetrics के लिए डेटा कहाँ से लेते हैं? From Twitter, Facebook, Google Plus, policy documents of government, then mainstream media, blogs, Mendeley, sites like Puppeteer, Publons, Reddit, Wikipedia, and YouTube. यहाँ से वो लेते हैं। ठीक? अभी Altmetrics can answer the questions like how many times it was downloaded, who is reading my work on Mendeley Google marking sites, was it covered by any news agencies, are other researchers commenting on it, how many times it is shared on Facebook, Twitter, which countries are looking at my research, etc. So there are some Altmetric tools. It is under progress. Altmetrics.com, then ourresearch.org, Plumix Metrics, Reader Meter, Loss Article, Publish or Perish, Science Card, Paper. This is the altmetric.com site, and from here, see what they are scanning. They are tracking the references used by policy documents, then mainstream media, high profile coverage from over 2000 outlets around the world. Online reference managers, they are using Mendeley. There are many. Zotero is also there. Then post publication peer review platforms, that is Publons and peers. Then English version. Then you can see various blogs, then patent citations, then citation indexes, research highlights, social media like Facebook, Twitter. Am I audible? मैम आवाज नहीं आ रहा है।
अभी आ रहा है मैडम, आता अभी येतं आ ना? रहा है. Yes. Yes. Now you are audible, ma'am. Okay. Now am I audible? Yes, yes, अभी Yes, आ रहा है ma'am. आवाज? Yes. Yes, ma'am. Yes. हाँ Okay. अभी आ रहा मैडम, Another, अभी तो गायब था another मैडम. metric tool is our research. You can see over here. There is Plumex metrics, and under this they will give you the citations. Okay. They will go for citation indexes, patent citations, clinical citations, and policy trial citations. Then under usage, it will give you data like how many clicks, how many downloads, how many views, how many video plays. Captures में bookmarks, code folks, favorite, readers, watchers. Then mentions में blog post, comments, reviews, Wikipedia references, news media. And under social media, it will give you the data like how many shares, likes, comments, and tweets. So reader meter is also one of the service. Hello. एक मिनट है, somebody's mic is on, फ्लॉस just a minute. सर्विस, यहाँ पे मैंने कोविड-19 कीवर्ड दिया है और इसमें मुझे 3 आर्टिकल्स आए. Suppose I want to see the metrics for this. So it is giving me the details like PLOS views are 1921, PLOS PDF downloads are 2170, PLOS XML downloads are 917. So total usage is 5008. Was discussed on Twitter 14 times and cross reference is 1. So publish or perish जैसे मैंने बताया, it is free software you can download. Science card is also one of the service. Paper critic and crowdometer are. So friends, these are all the tools and terminologies you must know, right? So if you have any questions on this, you are free to ask. Otherwise, I will share my another presentations over here. If you have any query, you can. Yes. हॅलो मॅडम. हाँ. हाँ मॅडम, मी जाधव सर बोलतो, डॉक्टर विकास जाधव. बोलिए. हाँ मैडम, जब हम रिसर्च स्कॉलर सॉरी इसके ऊपर रिसर्च स्कॉलर के ऊपर जब अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे सर जो थोड़ा सा ना जोर से बोलिए. हेलो मैडम. हेलो. You are not audible. यादव सर. हाँ मैडम, ये तो हाँ, आवाज. बोलिए. हाँ, हाँ बोलो. जब हम रिसर्च स्कॉलर पे अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे ईमेल नॉट वेरीफाइड ऐसा ही दिखाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर आप चैट बॉक्स में डालेंगे क्या आपका क्वेरी? या ओके मैम. मुझे आवाज नहीं आ रहा है. मॅडम हॅलो. हाँ. हॅलो. हा मॅडम, मी वानखेडे बोलतेय. हॅलो. हाँ बोला ना. मॅडम मला थोडं एक क्वेरी आहे. ओपन ऍक्सेस जर्नल्सला जसं आपण बऱ्याचदा आपण बघतो की आपल्याला त्या ठिकाणी इम्पॅक्ट फॅक्टर दाखवलेला असतो. बट वेन वी सर्च ऑन द DOAJ और ऑन ऑल ओपन ऍक्सेस जे काही पोर्टल्स असतात त्याच्यावरती जेव्हा आपण सर्च करतो तर तेव्हा ते जर्नल्स जे आपण बघितलेले असतात किंवा आपल्याला त्याचं आलेलं असतं तर ते तिथे दिसत नाहीत. त्याचं मिनिंग काय? म्हणजे ओपन ऍक्सेस इकडे ते दाखवतात, स्कोपस इम्पॅक्ट फॅक्टर पण दाखवतात, इंडेक्स पण दाखवतात, पीअर रिव्ह्यूड जर्नल्स म्हणून पण ते असतात. बट दे डोंट शो इट लिस्ट इन द लिस्ट ऑफ द स्कोपस और ऑल द DOAJ वगैरे. नाही नाही, तुम्हाला काय करायचंय की यू मस्ट सी चेक अँड व्हेरीफाय. सारे जर्नल्स जे आहेत ते क्लोन जर्नल्स पण आहेत ओपन ऍक्सेस.
हा ते सांगतील आहे. म्हणजे they will imitate actually the ISSN and title of the journal. But हा predatory publishing मध्ये येतं ते. तर तुम्हाला त्याचं हा नॉलेज असलं पाहिजे and you should cross verify all the things. And then only you should go for the selection of the journal. That is very important. ते सर्च करताना मग तोच गोंधळ होतो की ते कुठे सर्च करायचे. ओपन ऍक्सेस मध्ये तर ते दाखवतात, बट इट इज नॉट गिवन इन द स्कोपस लिस्ट. बट इन देअर बरोबर आहे ना मॅडम, बरोबर आहे हा. ना. जे ओपन ऍक्सेस मध्ये आहेत काही जर्नल्स जे स्कोपस मध्ये इंडेक्स्ड आहेत त्याच्यावरती क्लिअरली लिहिलं असेल ना, आणि ते दोन्हीकडे मिळतील ना तुम्हाला. स्कोपस मध्ये मिळायला मिळतील पाहिजे, आणि इकडेही मिळतील. मिळायला क्रॉस पाहिजे. व्हेरिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. आजकाल काय आहे, ते जर्नल सिलेक्ट करणं दॅट इज अ बिग टास्क. हा राईट. तर मी ओपन ऍक्सेस घेते, तुम्हाला काही काही गोष्टी क्लिअर होतील यात. येस येस. ओके ओके, थँक्यू. Shall I start with another session? हॅलो मॅडम. प्लीज. हॅलो. बोला. हा मॅडम, मी रणजित आठवले बोलतोय. मॅडम, आता अलीकडे युजीसी केअर लिस्ट आणि युजीसी रेफर्ड इंडेक्स रेफर्ड जर्नल्स हा. याच्या बाबतीत सध्या बऱ्याच ठिकाणी चर्चा सुरू आहे की युजीसी केअर लिस्ट आता सध्या अलीकडे कमी केलेलं आहे. स्क्रॅप केलंय त्यांनी ते. हा, तर आणि दुसरीकडे असे बरेच असे फेक कॉल पण येतात की तुम्हाला पेटंट पाहिजे का, तुम्हाला पेटंट करून पाहिजे का, पेटंट पाहिजेत का, असे वेगळ्या प्रकारचे मेल किंवा कॉल पण येतात. तर याच्यात आपण ऑथेंटिक कसं काय समजायचं की हे ऑथेंटिक आहे की त्याला अथॉरिटी आहे, याच्या बाबतीत काय असं आहे का? असं तर मी एक गोष्ट सांगू तुम्हाला की मला पण मेल येतात, 40,000 रुपये द्या, पेटंट तुमच्या नावाने घ्या. हा. पहा, मी स्वतः 11 वर्ष पेटंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मध्ये काम केलेलं आहे. आय नो एव्हरी सिस्टीम ओव्हर देअर. आणि मला लोक विचारतात, मॅडम तुम्ही किती पेटंट घेतले? मी IPR वरती खूप मोठे लेक्चर्स देते. सिन्स 2006 मी IPR वरती बोलते. लेकिन माझ्या नावावरती एकही पेटंट नाही, कारण मला हे जमत नाही. टू थ्रो द मनी अँड टेक द पेटंट. हे सगळे जे आहेत ना, ते आता API स्कोर 2009 ला लावला ना युजीसीने, त्याचे रिपरकेशन्स आहेत. त्याच्या पूर्वी काय होतं, उसके पहले कुछ भी नहीं था 2009 के पहले. जिसको रिसर्च करना है वो रिसर्च में बिजी रहता था, जिसको क्लासरूम में पढ़ाना अच्छा लगता है वो बहुत एंजॉय करता था बच्चों के साथ में. दैट वाज एक्चुअली द सिस्टम जो अच्छी थी. जब से इन्होंने मार्किंग सिस्टम लगाया ना, तब से हुआ ऐसे है कि ऑल प्रीडेटरी पब्लिशिंग केम आउट. ठीक है, हर चीज के लिए पैसे फेंको. देखिए, आपको 10 पेपर चाहिए ना, यू विल थ्रो द मनी, और बैकडेटेड में भी आपको सुविधा है. वो क्लियरली अभी आपको मेल भेजते हैं, बैकडेटेड स्कोपस इंडेक्स जर्नल में आपको अगर पब्लिश करना है, इतने इतने पैसे दो, हम छाप के देते. वहां पे कहीं तो भी एथिक्स का सवाल आता है सर. यू गॉट माय पॉइंट? थँक्यू. Yes. Actually, that is the thing. Now I am coming to open access, right? Now open access का मतलब क्या है? Open access का मतलब है free, immediate, permanent, full text online access, right? देखिए, open access का मतलब है the literature which is available on the web, which you can access free of cost, full text, and free from copyright also. Free from copyright का मतलब ये है कि you need not take the permission of the author. ठीक है, आप एक क्रेडिट देके उसको यूज कर सकते हो, फेयरली यूज कर सकते हो. अभी ओपन एक्सेस में अगर आप आपका पेपर पब्लिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, उसका विजिबिलिटी बढ़ेगा, उसका यूज बढ़ेगा, नेचुरली ज्यादा साइटेशंस मिलेंगे, और नेचुरली उसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा. ये जो ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज है वेब पे, तो उनका मेटा डेटा होता है,
यानी सर्चिंग एंड ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज होती है. देन दे फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. दे आर इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजिन्स. देयर इज लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन एंड यूज ऑफ परमानेंट डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स एंड यूआरएल्स होते हैं. देखिए, व्हेनेवर यू गो टू गूगल और आप सर्च करते हो तो आपको इस प्रकार से फीलिंग आएंगी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड. काम की चीजें कम मिलेंगी, ज्यादा चीजें ज्यादा मिलेंगी. So you must know actually the digital libraries and web-based libraries, which are called as virtual libraries. Right? It's just like a proverb: give a man a fish, feed him for a day; teach a man to fish, he feeds himself for a lifetime. Now we can see open access literature is scattered in different vehicles like open access journals, open access archives, institutional repositories, electronic thesis and dissertations, and OER and OCW. OER stands for Open Educational Resources and OCW stands for Open Courseware. Now, I will just show you the websites for open access journals. Huh? Hello? बोला ना. येस मॅडम, कंटिन्यू. त्यांचा माईक ऑन होता. Huh? त्यांचा माईक ऑन होता मॅडम, तुम्ही कंटिन्यू Okay, sorry. Okay. DOIG is one of the sites, free medical journals, Highwire Press, and OpenJK. Right? This is DOIG page. You can search for journals and articles also. 130 countries are representing 80 languages journals, and you can see more than 19,000 journals are there, and 12,000 journals without APC. APC means article processing charges. Author से पैसे नहीं लेते हैं. ओके. इंडिया के भी 282 जर्नल्स जो है इसमें है. नाउ यू कैन सी मैंने फार्मेसी कीवर्ड्स दिया, फार्मास्यूटिकल साइंसेस. 87 journals आए. This is one of the journal. You can see back volumes and archives, all available current and archives. This is one of the article downloaded. 15 pages का article है, right? और 87 में से 44 journals ऐसे हैं जो ऑथर से फीस नहीं चार्ज करते. ये वर्ल्ड फेमस पब्लिशर्स है जिनके भी ओपन एक्सेस जर्नल्स है, जैसे एल्सेवियर है, सिंडो है, हिंदवी है, स्प्रिंगर ओपन है, टेलर फ्रांसिस, सेज, देनविले. और यू कैन सी सब्जेक्ट वाइज सर्चेस, एंड दिस इज वन ऑफ द आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस. इसका आर्टिकल यहाँ पे डाउनलोड हो गया. यू कैन सी 10 पेजेस का आर्टिकल है. यू कैन सेव इट और यू कैन टेक द प्रिंट आउट. दूसरी साइट है हाईवायर प्रेस, और इसमें इतने सारे साइंस जर्नल्स को उन्होंने एक्सेस दिया है. ये वन ऑफ द जर्नल है, एडवांसेस इन न्यूट्रिशन. आप उसके में से कोई भी एक आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हो. द थर्ड वन इज फ्री मेडिकल जर्नल्स. इसमें इतने सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको मिलेंगे. इसमें एक एम्बार्गो पीरियड रहता है, मीन्स कभी कभी वो 6 महीने के बाद में फ्री कर देते हैं, कभी कभी 12 महीने के बाद में फ्री कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एम्बार्गो पीरियड. ये फार्माकोलॉजी का एक जर्नल है. आर्टिकल डाउनलोड हुआ 8 पेजेस का. देन दिस इज ओपन जेगेट. जेगेट नाम का कंसोर्शिया है और उसका एक पार्ट है ओपन जेगेट. देखेंगे यहाँ पे सब फैकल्टी के जर्नल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. मोर देन 8,000 जर्नल्स. मैंने बिजनेस कीवर्ड दिया, 49,000 आर्टिकल्स मुझे मिले. मुझे ये आर्टिकल फुल टेक्स्ट लिखना है तो क्लिक करूंगी पीडीएफ को. ये आर्टिकल ओपन हो गया. आप एडवांस सर्च भी कर सकते हो बाय यूजिंग बुलियन लॉजिक. ये 2 आर्टिकल्स मिले मुझे. द पेपर वाज एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड ऑन द सेम डे. ये जो है ये इतना अच्छा कंटेंट था कि रिव्यू बोर्ड ने बताया कि इनको अर्ली पब्लिकेशन वेबसाइट में अपलोड कर दो. बड़े बड़े जर्नल्स की अर्ली पब्लिकेशन वेबसाइट रहती है. भले आपका पेपर जुलाई एडिशन के लिए एक्सेप्ट हुआ है, वो आज ही अपलोड हो जाए. मेरा पेपर था 2006 में, यूएस का ये मैगजीन है. इनका खासियत ये है कि 3 वीक्स में आपको बता देते हैं वेदर द
पेपर इज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और नीड्स रिवीजन। ये मेरा पेपर आया था। अभी जितना आप ऑनलाइन खुद का प्रेजेंस बनाओगे उतना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एल्सवेयर का एक जर्नल था स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स, जिसमें मेरा एक पेपर आया था गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज इन इंडिया। ये पेपर पढ़ के मुझे ये लेटर आया था स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, यूनिवर्सिटी एट अल्बानी। वो एक इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश करने जा रहे थे साइबर बिहेवियर का। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसा ही इंडिया का केस स्टडी बना के भेजो। मैंने 25 पेजेस का केस स्टडी बना के भेजा था जो पब्लिश है। ये सब जर्नल्स जो है जो इंडिया से पब्लिश होते हैं वो ओपन एक्सेस कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे। ये कुछ डिजिटल लाइब्रेरीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले 1 मिलियन विजिट, इसमें उन्होंने यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। ये सर्चिंग ऑप्शन है, आप कोई भी, मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया। ये किताबें आई पुरानी से पुरानी किताबें आई। यहाँ पे देखेंगे आप 1902 की है, 1876 की। ये सब लिटरेचर उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसे बुक खुलती है, टिफ इमेज जो होती है उसमें उन्होंने इसको सेव करके रखा है। तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए। ये जस्ट टेक अ लुक कौन से सब्जेक्ट की कितनी किताबें उन्होंने डिजिटाइज की है अभी तक। जस्ट टेक अ लुक। मोर देन 9 लाख किताबें उन्होंने अभी तक डिजिटाइज की है, और पुराने से पुराने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स है और कुछ किताबें आप यहाँ पे देखें। एक हमारा MHRD स्पॉन्सर्ड लाइब्रेरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका स्लोगन है वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, KG to PG एक ही लाइब्रेरी। IIT खड़गपुर इसको मेंटेन करती है। बहुत सुंदर लाइब्रेरी है। और NAC भी एक क्वेश्चन पूछती है कि आपका सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री लाइब्रेरी। लॉगिन होना पड़ता है। ये मैंने जॉन हॉपकिंस का क्या है कोविड स्टेटस वो देखना चाहा। डैशबोर्ड आ गया, कोनेट प्लाज्मा जैसे मोटिवेशनल लेक्चर्स आ गए, इनोवेशन टू रिस्पॉन्ड टू कोविड-19 करके इनोवेटिव आर्टिकल्स मिले। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सोशल साइंस का सर्च किया, बहुत सारे आइटम्स मुझे मिले। उसमें मैंने लॉ लिया, लॉ के भी मुझे बहुत सारे आइटम्स मिले, मोर देन 13 लाख। देन मैंने उसमें क्रिमिनल लॉ सिलेक्ट किया तो 2 लाख से भी ज्यादा आइटम्स मिले। उसको मैंने क्लिक किया पहला, वो पुसाट लाइब्रेरी का आइटम है। उसको मैंने खोला तो इट इज अ क्वेश्चन पेपर क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ऐसे आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ, आर्टिकल, बुक, करस्पॉन्डेंस, जर्नल, लॉ एक्ट, लॉ जजमेंट, मीडिया आर्टिकल, क्वेश्चन पेपर, रिकॉग्निशन। You will get the text, you will get the presentations, images, videos, applications and audios from me. You will also get photographs, posters, scripts, activity, right? ये सब आपको यहाँ से मिलेगा। So this is NDLI. Then DOAB, जैसे DOAJ है वैसे डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स है। यहाँ पे मैंने क्रिमिनल लॉ कीवर्ड दिए, टेररिज्म, क्रिमिनल लॉ। ये किताब अगर मुझे खोलना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस। देखो 300 पेजेस का किताब है। यू कैन डाउनलोड एंड सेव एंड यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस। DOAB is also important. There is one more digital सांस्कृतिक संपदा पुस्तकालय, कल्चरल हेरिटेज डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पे हिंदी स्पोकन स्टेट्स का पारंपरिक साहित्य, मौखिक महाकाव्य, लोक साहित्य, ऐसा चीजें आपको मिलती है। यहाँ संपत्ति है, देखिए देन राजस्थान के बारे में जो भी चाहिए, उनके डिजिटल इमेजेस, देन लोक भजन, नृत्य गीत। पारंपरिक साहित्य में बुद्ध की कहानी आपको यहाँ पे मिलेगी। मुक्त बोधा का भी एक आध्यात्मिक साहित्य आपको यहाँ से मिलेगा, उनकी डिजिटल लाइब्रेरी है। और उनके पास में मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन भी है। ये डिजिटल लाइब्रेरी में से कोई भी एक बुक अपन खोले तो इस प्रकार से स्टॉक शुरू हो जाते हैं। इनका जो ये है मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन जोगलेकर, कोडलेकर और सांब दीक्षित फैमिली का है।
सपोज जोग्लेकर कलेक्शन देखना है, उसमें से एक मैन्युस्क्रिप्ट देखना है, तो देखिए 20 पेजेस का एक मैन्युस्क्रिप्ट है ये ओपन हो गया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। हमारा एक भारत का नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, दैट इज राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, और उसका स्लोगन है अतीत की रक्षा भविष्य की सुरक्षा, सेव द पास्ट फॉर द। यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने भारतीय कृति संपदा का भी डेटाबेस बनाया मैन्युस्क्रिप्ट का। पहली फेज में उन्होंने बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाया है, नाउ दे आर गोइंग फॉर फुल टेक्स्ट डेटाबेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी ये बच्चों के लिए है, क्लास 1 से क्लास 12 के लिए। अदर देन टेक्स्ट बुक्स जो भी रेफरेंस बुक्स लगती है उसके लिए लाइब्रेरी है। एक बुक मैंने यहाँ पे ओपन की हूँ एनवायरनमेंट पे, ये पूरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। देन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिजिटल लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी है। अभी पुस्तकालय की छुट्टियां है, बच्चों को ये लाइब्रेरी जरूर बताना। इसमें देखिए बच्चा कहता है कि मुझे आज रेड कवर का ही किताब पढ़ना है, तो वैसे ब्राउजिंग दिया है, एज वाइज दिया है, साइज ऑफ द बुक और कैरेक्टर्स यूज। बच्चा आराम से इसको क्लिक करता है, रीड दिस बुक क्लिक करता है और एक एक पेजेस पलटा पलटा के बुक पढ़ता है। There is one more library, Story Palace. Yeah, Story Place. यहाँ पे बच्चे को विद ऑल मल्टीमीडिया स्टोरी बताई जाती है। देन प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको फॉरेन पब्लिश्ड बुक्स मिलेंगी, यहाँ पे काफी ओपन एक्सेस बुक्स। लिब्रिवॉक्स इज एक्चुअली ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको ऑडियो बुक्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको फिक्शंस मिलेंगे। इंग्लिश में सबसे ज्यादा बुक्स ऑडियो बुक्स बनाए हैं, मराठी में एक ही है, मैंने सर्च किया था, मानवीय अधिकाराचा जागतिक जाहीरनामा। आपको देखिए ट्रैवल फिक्शंस मिलेंगे, क्राइम एंड मिस्ट्री मिलेंगे, ड्रामेटिक मिलेंगे, इस प्रकार का मिलेगा। इनफ्लिबनेट इज ऑल्सो डूइंग वेल। इनफ्लिबनेट ने ई शोध सिंधु दिया है हर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को, जहाँ पे वेब ऑफ साइंस का सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद में शोध शुद्धि है, वो प्लेजरिज्म चेक के लिए है। एनलिस्ट है, इट इज द रिसोर्सेज फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज, उनकी खुद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, उनके पूरे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनके वॉल्यूम्स यहाँ पे मिलते हैं, सब आर्टिकल्स। उसके बाद में विद्वान डेटाबेस उन्होंने बनाया है, मैंने आपको पहले इस सेशन में बताया। विद्यामित्रा ई कंटेंट पोर्टल बनाया है उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए, यूजी पीजी के ऑडियो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स और टेक्स्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। शोधगंगा आपको सबको पता है, राइट? शोधगंगा में मैंने एक सर्च किया बाय गिविंग द कीवर्ड बुद्धिज्म, तो मुझे 166 थीसिस आए। अभी मैं आपको एक और साइट बताती हूँ जो वंडर साइट है, एकदम ध्यान में रखिएगा वो साइट, कभी भूलना नहीं रिसर्च पर्पस के लिए। और मैं बताती हूँ अभी आपको। शोधगंगा का एक पार्ट है शोधगंगोत्री, जो रिसर्च इन प्रोग्रेस बताता है आपको, जो आपके सिनॉप्सिस होते हैं, जो आरआरसीएस में पास होते हैं, वो यहाँ पे है। ये साइट मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज NDLTD, नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशंस। यहाँ पे थीसिस रिसोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे इंडिया आएगा, इंडिया का शोधगंगा। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का प्रो है, बांग्लादेश का ये है, देन कनाडा का थीसिस कनाडा है, यूरोप का डार्ट है। हर देश का एक अपना ETD का वेबसाइट है अवॉर्डेड थीसिस का। और NDLTD से अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये सब वेबसाइट्स में सर्च करके मिलेगा। देखिए सेम बुद्धिज्म कीवर्ड मैंने डाला, जहाँ पे 166 थीसिस मुझे मिले थे, यहाँ पे मुझे 3121 थीसिस। चाइनीज लैंग्वेज में सबसे ज्यादा है, इंग्लिश में 907 है। ये तो हमारे काम के है। इसमें से एक थीसिस मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका। ये सब थीसिस है बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका 443 का है, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन ने अवार्ड किया हुआ थीसिस है, DLT। इंटकैट है जो यूनियन कैटलॉग है, जैसे अमरावती यूनिवर्सिटी में कौन से बुक्स है आप यहाँ से देख सकते हो। ये सबके बैक्स जो है यूनिवर्सिटीज के, वो आपको इंटकैट से मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद में यू कैन सी अमरावती यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड कैट है, वर्ल्ड का यूनियन कैटलॉग है, CLC ने बनाया है।
इसके बाद में OCW का मतलब है ओपन कोर्सवेयर। एक कोर्स है, उसका सिलेबस है और उनके एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ ये कंटेंट। MIT के 2200 कोर्सेस ऐसे ही रन हो रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन। उनके बनाए उनके एक्सपर्ट्स ने बनाए गए सब मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, सब आपको मिल जाएगा। वैसे ही इंडिया से देखा जाए तो इंडिया से भी OCW बना है और आप यहाँ पे देखेंगे NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग 7 ओल्ड IITs और IISc का है। आपका बच्चा MHRD ने स्पॉन्सर किया है और आपका बच्चा अगर लोकल कॉलेज में भी इंजीनियरिंग करता है उसको IIT प्रोफेसर का मार्गदर्शन मिल सकता है थ्रू दिस वीडियो कोर्स। IIT के लेक्चर्स के एक घंटे के लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है और वेब कोर्स में देखेंगे तो उनके बनाए हुए नोट्स भी अवेलेबल है। ई ज्ञानकोश फॉर इग्नू के जो नोट्स है उनके वीडियो लेक्चर्स है सब आपको ई ज्ञानकोश से मिलेंगे। इसको फ्री ऑफ चार्ज सर्विस। देखिए ये उनके नोट्स NCERT सब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के पूरे टेक्स्ट बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं। स्कूल लेवल में काफी डिजिटल प्रोजेक्ट्स हुए और वो मर्ज होते गए नए नए प्रोजेक्ट्स में। आपको ये पीजी पाठशाला बताना चाहूंगी कि स्वयं कोर्सेज के लिए बनाया है और स्वयं कोर्सेज के लिए और भी एक 4 क्वाड्रेंट्स में है। आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, टेक्स्ट नोट्स, क्विजेस, असाइनमेंट सब मिलेंगे और ये CEC करके है, ये आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी देता है। लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का मतलब है एक छोटा सा क्वेश्चन है उसका ये आंसर है और यहाँ पे टीचर बैठ के आपको पढ़ा रहा है। तो मैंने इस चीज को 2009 में जाना और मैंने UGC का प्रोजेक्ट दिया था क्रिएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, राइट। और मैंने ये एक पोर्टल बना के दिया था जहाँ पे लेक्चर नोट्स है, PPTs है, क्विजेस है। 7.63 लाख रुपीज मुझे UGC ने स्पॉन्सर किए थे। मूडल में मैंने ये बना था। मूडल में क्विजेस भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो नेट के लिए क्विजेस बनाई थी मैंने नेट लाइब्रेरी साइंस में। उसको ICSSR ने 3.5 लाख रुपए दिए थे, राइट। तो इस प्रकार से ये सब चीजें बनाई हुई मैंने। So this is open access is just like Aladdin ka chirag for all of us. So you should follow all these things. Thank you very much. I have taken 5 minutes extra. Sorry for that, but I have covered 2 major subjects, right, for you. This is the very first lecture for you in this course. Thank you so much. Madam, one request. Could you share your PPTs because in the PPT there were a lot of सर थोड़ा मोठ्याने बोला ऐकते. Hello, madam. Sir, Yes. recording I will share. In the recording, you will get all the content. Dhananjay Okay, sir. okay, madam. Thank you. Yeah, in recording, you will get all the screen shared. So you can note the content from the recording. Okay. Anyone else? Hello, ma'am. हाँ, अल्फ्रेड सर बोलिए. Ma'am, I want to ask one question. Yes, sir. Please be louder. Voice is very low. Oh. हाँ सर थोड़ा मोठ्याने बोला प्लीज. Madam, Speak could you loudly. explain about Gangotri, ma'am? Gangotri, please once again, Gangotri, about Gangotri. शोध गंगोत्री बद्दल विचारतात आहे मॅडम. अच्छा, Shodha Gangotri is a part of Shodha Ganga, and from there you will get your synopsis, that is research in progress. Suppose you are working on a topic and you want to know whether in any other university anybody is doing on the same subject or relative subject or not. And also these research projects synopsis will also be there, and fellowships synopsis are also be there. You can also go for Shodha Gangotri. Thank you, ma'am. Thank you so much. Any more question? Madam, did you update my sheet, ma'am?
My name was not listed, ma'am. Sir, I will check that. Do you have any question related to session? No, ma'am, I already noted down everything. Okay, okay. So if there are questions, we will wind up our first session. I extend my sincere thanks to respected Dr. Mangala Hirvede madam for wonderful session on research matrices and open access. Thank you so much, madam, for giving your valuable time and engaging the session. Thank you, madam. Thank you. Thank you Thank all. you, madam. Thank Thank you, ma'am. Thank you. Have a Thank nice you, day, ma'am. madam. Thank you. you, ma'am. Thank you, madam. Yes. Thank you so much. So friends, here we will stop our meeting. We will meet at 1:30. 1:15, I will start our meeting again. And till 1:30, you have to join. Now you can proceed for your lunch break. Vittal sir, you have raised your hand. Any question? No, madam. No. Okay. So friends,